Hello students, welcome back to my channel Chemistry Explorer. So today I'll talk about electronic effect. There are four types of electronic effect: mesomeric effect, inductive effect, hyperconjugation and electromeric effect. So today I'll talk about first mesomeric effect. So what is mesomeric effect? It is a permanent effect, independent effect. It does not depend upon distance. Okay. Actually, mesomeric effect is the ability of an atom or group to withdraw or donate pi electrons from an unsaturated system. Means किसी एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के पास कितनी एबिलिटी है कि वो चाहे तो विड्रॉ कर सके या फिर डोनेट कर सके पाई इलेक्ट्रॉन्स. कहाँ से? फ्रॉम अनसेचुरेटेड सिस्टम. सो व्हाट इज अनसेचुरेटेड सिस्टम? लाइक फॉर एग्जाम्पल एल्कीन एंड एल्काइन्स means which two carbon having double bond or triple bond, these are called unsaturated system. Okay, what is pi electron? Suppose this is single bond, this is double bond. In single bond we can say this is a sigma, and in pi electron there are two. In double bond there are two types of this. Single bond, one bond is sigma and another bond is pi. So two electron from pi electrons, these are called pi electrons from an unsaturated system is referred as mesomeric effect. There are two types of mesomeric effect. First is plus M effect and another one is minus M effect. Let us see what is plus M effect. If a transfer of a pi electron is away from the group or atom, inhibiting plus mesomeric effect. In other words, in such group at least contain one lone pair. एक lone pair होना चाहिए. नेगेटिव चार्ज दिख जाए या फिर लोन पेयर दिख जाए तो मान लेना, वहाँ पे समझ जाना कि वहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो हो रहा है. कंटेनिंग एटम विच इज़ इन कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए. ऐसे जैसे एक लोन पेयर है, ये दिस इज लोन पेयर एंड दिस इज कॉन्जुगेटेड विद द डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड. ओके, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉन्जुगेटेड विद द मल्टीपल बॉन्ड. सो कॉन्जुगेशन होनी चाहिए. ठीक है, रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए. तो प्लस एम इफेक्ट में या तो एक लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा. ठीक है. Okay, let us see the example of plus M effect. Like O having two lone pairs. So this OH show plus M effect. Okay. Second, like CN negative. CN is having negative charge. So this shows plus M effect. Third, we can say NH2. N having one lone pair, so this show plus M effect. Okay, so which have lone pair or negative charge, that structure is matlab show plus M effect. Okay, we will study about the strength of plus M effect. जो strength है ना plus M effect की, वो कुछ factors है जिन पे वो depend करती है. So first is effect of overlapping. This is 2p overlapping and this structure having 3p overlapping. So 2p overlapping is more effective than 2p overlapping because in second period element having better overlapping than third period overlapping. ऐसा क्यों होता है overlapping के बारे में? जो size है ना SS का is smaller than pp orbitals. Okay, so hence the distance of nucleus is small from electron. So SS bond is stronger than the pp bond. Okay, second is effect of electronegativity. Second effect is effect of electronegativity. So, मान लीजिए मेरे पास ये स्ट्रक्चर है. ठीक है, जो इस स्ट्रक्चर में जो A एटम है ना वो कम नेगेटिविटी उस एटम की कम है और इस स्ट्रक्चर में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है.
ठीक है, अब जिसकी कम है, मान लो उस लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ए था वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, तो हाई टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, उसके पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात हो रही है। और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनके पास कम टेंडेंसी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल सपोज दिस इज having NH2 OMe and this is fluorine. NH2 F is more electronegative than oxygen, and oxygen is more electronegative than nitrogen, phone. ओके, सो देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसकी अपनी कम टेंडेंसी रखेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाई टेंडेंसी टू डोनेट, तो इसकी क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ, ए की हाई टेंडेंसी, फिर इसकी बी एंड देन सी। ये फ्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसकी टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ओके, सो थर्ड इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन में मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें 3 ग्रुप्स प्रेजेंट, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। जो ग्रुप 1 है वो ग्रुप 2 के साथ कॉन्जुगेशन में है। ग्रुप 2 इज कॉन्जुगेशन विद ग्रुप 3, पर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 3 ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ओके, सो क्या इफेक्ट पड़ता है प्लस एम ग्रुप पे, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट, स्ट्रेंथ कम कर देता है प्लस एम ग्रुप की। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, लाइक आई हैव दिस स्ट्रक्चर OMe एंड दिस इज इन क्रॉस कॉन्जुगेशन, देख रहे हो ये इसके साथ है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, बट ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये क्या होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है वो स्ट्रेंथ कम करेगा प्लस एम की, तो एक ज़्यादा होगा और बी कम होगा क्योंकि डिक्रीज कर देगा। समझ रहे हो? अब सेकंड एग्जांपल से देखते हैं, लाइक इसमें नो क्रॉस कॉन्जुगेशन, नहीं क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो NH2 इज ग्रेटर देन NHCOOCH3। डन? ओके, नेक्स्ट इज -M group. When a group completely takes out pi electron from a conjugated system through resonance, जब एक कोई भी ग्रुप सारे पाई इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, उसको बोलते हैं -M इफेक्ट। फॉर एग्जांपल ये पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, ये सारे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ना पाई इलेक्ट्रॉन, इस पूरी शिफ्टिंग को बोलते हैं -M इफेक्ट। ओके, ग्रुप विच हैव वेकेंट ऑर्बिटल मीन्स विच हैव वेकेंट p ऑर्बिटल सिस्टम, विच हैव वेकेंट d ऑर्बिटल सिस्टम, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। और जो -M में टेंडेंसी टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल सिस्टम, ओके, लाइक दिस एग्जाम्पल, टेंडेंसी टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल सिस्टम। जो -M होता है, -M ग्रुप को हम लिख सकते हैं, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो +M होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज़ +M इफेक्ट, विच इज़ -M इफेक्ट, हम क्वेश्चंस कैसे आगे सॉल्व करेंगे। जो +M इफेक्ट है उसके पास लोन पेयर होने बहुत इंपॉर्टेंट, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो एटम पे। ठीक है, +M लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, कहीं भी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दिख जाए दैट मीन्स +M ग्रुप, एक्सेप्ट हेलोजेंस। I'll tell you the reason why halogens are not showing +M group. In -M group, electronegative atom like F, O, N, fluorine, nitrogen, oxygen, chlorine, these are electronegative atom. -M group में electronegative atom present हो, ठीक है, तो ही -M group शो करेगा, -M इफेक्ट शो करेगा।
ठीक है, अब मान लीजिए n है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये शो करेगा प्लस m, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है तो ये भी शो, जिसके पास लोन पेयर है वो सारे क्या शो करेंगे, प्लस m इफेक्ट। अब हेलोजन के केस में क्या होता है भाई, इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किस इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस m इफेक्ट शो करते हैं। तो एक्सेप्शन है, भले ही इनके पास लोन पेयर है मानना, फिर भी ये माइनस m इफेक्ट शो करेंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, लेट अस सी द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्लस m एंड माइनस m। इफ यू देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दिस फिनॉल, फिनॉल हैव 2 लोन पेयर है, दिस शो प्लस m इफेक्ट, प्लस m इफेक्ट ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये साथ के साथ ये जो है ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, दिस इज माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। आई टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो ये साइड बाय साइड माइनस आई भी इफेक्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई में क्या होता है, जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो माइनस आई शो करता है, कहीं भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग जाए वो माइनस आई शो करता है। ओके, ये तो समझ लिया। अब इन दोनों में से कौन डोमिनेटिंग होगा, प्लस m भी देख लिया एक ही में और माइनस m भी, तो प्लस m इज मोर डोमिनेटिंग देन माइनस m। ओके, लेट अस सी द अनदर एग्जांपल। दिस इज एनिलीन, एनिलीन हैव 1 लोन पेयर एंड नाइट्रोजन हैव 1 लोन पेयर दिख जाए प्लस m। अच्छा, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस आई। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल में कार्बन, ये बेंजीन डायरेक्टली अटैच है कार्बन, पर कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर ही नहीं है, ना कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या शो करेगा, माइनस m ग्रुप और माइनस आई भी। ओके, माइनस m क्यों करेगा, बिकॉज कार्बन डज नॉट हैव लोन पेयर नहीं है, इस वजह से माइनस m शो करेगा। फोर्थ इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो प्लस m शो करेगा, और ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या शो करेगा, माइनस आई। ओके, इसमें भी वही केस है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो माइनस m शो करेगा। ओके, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये क्या शो करेगा, प्लस m, और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये माइनस आई। ओके, सेवन्थ में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लोन पेयर की वजह से ये शो करेगा प्लस m, और ऑक्सीजन जो है वो शो करता है माइनस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और माइनस आई शो करेगा। इस केस में ये ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ, तो मतलब लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, रेजोनेंस होगा इस केस में। तो देखो लोन पेयर है, लोन पेयर देखते समझो भाई ये प्लस m इफेक्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो समझ जाओ माइनस आई इफेक्ट है। ओके, इस केस में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है तो सीधा लिख दो माइनस m इफेक्ट है। टेंथ, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, सीधा लिख दो माइनस m इफेक्ट है। ओके, डन। सो दैट्स ऑल, आई होप you like the video. So please comment, share and subscribe my channel. Thank you.